have faced domestic violence in your life for a very long time. अभी रिसेंटली अगर आपने ये केस भी सुना है दैट बॉयफ्रेंड कट हर इनटू पीसेस एंड केप्ट इन फ्रिज. पर्सन वाज सर्विंग कोस्ट गार्ड. हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ. वो वाइफ ने, उसके 2 बच्चे थे, उसने पता है दोनों को उठा के बालकनी से नीचे फेंक दिया. अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड इन सम हॉस्पिटल. द मदर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. तो वो जो छोटी बच्ची आई थी 8 साल की, व्हाट दिस गार्ड डिड, यू नो, ही रिमूव द क्लोथ्स ऑफ दैट चाइल्ड. खुद के कपड़े निकाले उसने. एंड देन अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेटमेंट दिया था दैट ग्रैबिंग ब्रेस्ट्स एंड स्नैपिंग पजामा स्ट्रिंग इज नॉट कंसिडर्ड एन अटेम्प्ट टू रेप. So talking about one case that happened in Dungra, Valsad. He was 67 years old at that time and he had raped an 11-year-old girl. एक neighborhood था, उसमें उस आदमी की दुकान थी and she used to go to that shop daily का सामान लेने के लिए. So one day she got raped there. When my husband's dead body was brought and I was sitting there, I was crying very loudly, I was screaming. हमारे पास लड़की आती है 14 साल की उम्र में and she is pregnant. There was a case जहाँ उसको कभी पीरियड भी नहीं आया था लड़की को and she was pregnant and she was there to get delivered. Are there women जो उन लॉस को मिसयूज करके मनी एक्सटॉर्शन की कोशिश करती हैं? Have you come across such cases? She is like the calm before a storm, but she's also a storm. She is like a hurricane in heels. She's bold. She's beautiful. She wears a black coat like a suit of armor, and the Constitution is her sword and also her shield. She is a girl of Daman. She is amazing. So welcome to the 6th episode of She Speaks with Soumya. We have with us a very special guest today, and her name is Alpa Modi. Thank you, Dr. Soumya. So I want you to tell us something about yourself first. Okay. See, basically, I'm from Mumbai, born and brought up in Mumbai. My school, college, everything I finished from Andheri, western suburbs में जो पड़ता है. And after marriage, I came here in 1999 in Daman. Blessed with 2 children. I have 1 son, 1 daughter. And initially, when I came to Daman, I was working for corporate sectors. I was handling purchase department in some company. And as you are aware, like we females, we are always, you know, restricted. So due to my first pregnancy, I had to leave that and I entered into teaching field. So I became a teacher with my sons. I used to go to school and all. At the time of my second pregnancy, again, there was an issue because see, nowadays we all are in nuclear family. So there was nobody at home. So I started my own academy where I'm also an expert teacher in Fevicryl. Pidilite का एक division है. Okay. So there I teach art and craft related all stuff and I'm very much interested in that. In school also I used to teach art subject. After second delivery I was handling that academy. That also was going on very well and then few challenges came and I had to then think something else and I now today I'm a practicing advocate in Daman and I practice especially in Daman Civil Court. Okay. Yes. So that's quite a portfolio that you have. Yes, it is like, you know, like according to my family needs and needs of my children, I kept changing the things. And yes, one more thing, like at present, I'm also handling I'm also appointed as the chairperson of Child Welfare Committee, Daman District. Okay, that's great. Yes. So you already, I know about you that you started giving tuitions when you were 15 years old. Yeah, true. To fund your own education. Correct. So how did that change your perspective? See, what happened when I studied in girls' school and we were also in my parents' family. My father was the only earning member and we are 4 siblings. So it was very difficult for him also to manage the expenses. So I started giving tuitions because I don't know, since beginning I had that we have to be self-sufficient for ourselves. So that time what best I could do is giving tuitions to nursery and junior senior KG students. So it was just meeting up my college expenses also and not to, you know, put any burden on my family particularly. And that actually helped me a lot because with children, there are so many challenges. And I remember my first student, she had some speech problem. Okay.
And because she needed some special attention, so mother preferred that, okay, because I had recently started or mera first tha was experience. And then I started enjoying it. So I got many children after that. Then I was teaching in computer classes also. And that way only I supported my education. Like, So, what is your advice to young girls who are struggling right. with their finances and are also wanting to complete their education? So, how to maintain a balance Correct. in that? See, for young girls, I would like to tell them that they need to prioritize the things. And second thing, ki, it is very important to be self-dependent. It gives you a different sense of self-confidence, when you enter, because and you can also, you will get more and more skill regarding how to manage your time, because that time you also have to perform good in your academics. Along with that, you have the responsibility of your students, as like what I was giving tuitions, and also I was responsible for my students' results also. So that is also important. And second thing, when you interact with people, like at that young age, when I was interacting with parents, that helped me to understand children more and more. So, and for the young girls today also, even if the parents are capable, it is my advice to all the young girls who is going to watch me on this channel, that they must do some or the other activity which will give them some earning, because that will help in a long run. Self-confidence. Yes, self-confidence, self-dependent, and even a different sense of responsibility to manage your timings and schedules and all. And along with that, you have to do good at every stage. जैसे आपने बताया that you got pregnant, so it was Yes. life changing for you. तो उसके बाद Very में आपको आपका job change करना पड़ा था. Very true. So, what do you think in today's corporate world? Are there better opportunities or better services available for women postpartum? See, basically there are two sides of coin. So even today, I feel, because the judiciary helped in that, and now there are many acts like maternity benefit acts and all. It was there at that time also, before 10 years I'm talking. But what happened now the implementation, because now girls are more educated, females are also educated, and due to inflation now almost in all the families we see females are working. तो वो भी एक difference है कि now they became more aware. Okay, due to this mobile also, everybody is having mobile in hand, so they can immediately Google and find out that what are my rights and all. So that way, I think now the judiciary has taken that point, and in every organization, in every company, it is being implemented. So now we see that they are getting their maternity benefits. They get that 26 weeks का जो उनका leave period है. Maternity leave. Yeah, even the crash and all facilities are provided by the employer. Okay. And I feel there is a change in society, because earlier, we were following the old tradition, but now even men are changing their views about Working. yeah, that is the only reason is due to the awareness. Like if we see the advertisement also on television and other channels and all, so now there is a change, certainly. But still, at certain places, we need to work more for this particular aspect, that there are still discrimination with females who are pregnant, because the employer thinks that, okay, I will have to pay her for the maternity leave and all. So still that discrimination is there, but I think with time we will be able to overcome that. I think it happens naturally only. I'm not justifying it or anything, but आप किसी को hire कर रहे होते हो तो आप ये सोचते हो, अच्छा ये unmarried है तो ये शादी करके कहीं और चली जाएगी, Right. फिर मुझे कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा. Right. और अच्छा अभी तो शादी हुई है, अब फिर हम उसको पूछते हैं कि are you planning kids? It is very, and I find this question very pathetic. Like during interviews they ask, okay, then within 2 years you will be planning baby, and I said, okay, no, I did not think about that. Like when I speak to other some of my clients also, they complained about this, that when we go for interview they ask such questions. So even I feel that this should not happen, and that is a personal aspect, and it is something sometimes it is not planned also. It is a natural thing. हाँ. So, coming to your life, you have faced domestic violence in your life for a very long time. Yes, And then when you started fighting with it also. correct. So,
There was this case in Nagpur, I think. In Nagpur only. 24-year-old, there was a lady Yes, and she comes. and she committed suicide. Suicide. Very. And she made a video call to her parents that this is happening and now I cannot take it anymore. So, do you think that our system, our judicial system, is failing victims before it is protecting them? Like there are laws. Not exactly, Soumya. What happens, judiciary is at some place, okay? Now, courts will not come to know unless and until the victim goes and asks for help. Okay, so just now you spoke about my own personal life. So I would like to tell you, see, being highly educated, I was also a graduate. After that, I did diploma in teaching also. Self-dependent. Yes. Earning. Still it took me 15 years because of maybe the culture what we are, in which culture we are brought up. So we are being taught like, these are normal things and how to challenge and this is normal thing. It happens in every house and only females should always compromise, should understand, should adjust. I think I'm talking about a decade before. The scenario was such that boys in the family, they get that power because they are boy. No other reason. They can do anything. They can take the decision. Whatever they decide is only the right thing. And that was the only reason for all the domestic violence cases. This is my observation. Now what happened, imagine for 15 years even I suffered. I won't hide from you, like I went to the police station so many times. When I was assaulted, I went to police station, I used to file the complaint and next day morning when my husband asked for an apology and I used to say, okay, I will withdraw my complaint because my family comes first. And that way I suffered for 15 years. After 15 years, I would like to mention here, like motherhood gives you one strength. As when you are not having children, females are born strong, but we don't realize that power until we become mother. So after I got both my children, somewhere I felt that now this is the high time. Earlier only I used to suffer, now my children are also suffering. So that gave me the strength to raise a voice and to file a case in court against my husband. And later on also all these things, it got repeated, that apology and everything from the family. But that time I was that strong. No, I already have wasted 15 years now, not a single day more. And that way I got the courage. So my message to all the females out there is that if anything happens, just don't, you should have, like as such, in our society we say ke stri to tyagni murti, balidan, samarpan and all that. Okay, that is there and every female has that, every female since childhood when the girl is small. But at certain age, you should fix your boundaries. That if it goes beyond this, you should not tolerate and you must raise a voice. Judiciary and even the government has performed their task by making the law, by making the rules, okay, by giving us that protection in form of law. But how the courts and police station, until and unless the victim goes and approaches, घर तो नहीं आ घर नहीं आ सकता है. So for that it is very important. Even after I came into this profession, it was like for me that was high time because I had already filed the case and everything was sorted out and everything. But that time also I used to get cases like this, that female used to come and complain about the husbands, and it was pathetic in the sense, I would say disgusting, because there are still husbands in the society that whenever the wife goes out for buying the groceries or vegetables and all, whenever the female returns home, they literally check their clothes and everything just to find out that, oh, you are not having any affair outside. And when I heard this, I felt, my God, this is something, females are not aware only that they are also human and they have the right to be treated like human. So if a person is facing domestic violence in the house, what should that person do? See, first thing is,
prepare yourself, okay, that I cannot tolerate more than this. So, as I told you, we should fix our boundaries. The second most important factor is take help of family and friends, because they will support you and they will help you to build that strength, even if you have to go out and file a legal complaint. So second steps comes there, that even after involving the family members and friends and relatives, if you are not getting any solution, then the third important thing is you should go and lodge a complaint. Now, legally what we have seen is, because females have this habit of suffering for years, okay, so they don't remember the exact date, time of whenever the incident occurred, when the exactly that assault happened with her and all that. So for that, it is very important, whenever anything like such happens, you need to note it down Okay. with exact date, time, place, so that at a later stage when you are filing the complaint, all these things, because I have seen that females have suffered, but when they step into the box, when cross examination that stage reaches, that time they fail, because the advocates ask questions in such a way that they forget everything and they don't remember the date and all. So lack of evidence में ये सारे जो ऐसे जो culprits है, they get the benefit. छूट जाते हैं. They get the benefit. So that is also very important, that you note it down very precisely, and as far as possible, don't listen to anybody else when you take such decision that now I want to go legal. Just go with yourself. And when you have all the precise records, it will help you in your case legally. That's a very, very good idea. Yes, it's really, because I am seeing even in court today also, whenever such matrimonial disputes are going on. So what happens, because they have suffered for 5 years, now they don't remember. They mix up the things वो सब with the child and all. तो बुरी चीजें है ना, तो they would want to forget that also. Correct. And we have so many responsibilities. Like for एक औरत के लिए बच्चा संभालना, family members को संभालना, सास ससुर and everything, all the relatives, society. तो बाद में क्या होता है कि वो जो एक कंप्लेन लॉज होती है 5 साल बाद, 7 साल बाद, उसमें there are many loopholes. They mix up the things. And then the opposite party comes with some evidence and then he proves. So that is actually, we need to work more on that. And we need to make the females aware of this. That ऐसी कोई भी जो incidents आपके life में होते हैं. And like as I said, कि हाँ, we are ready to compromise at any stage, being a female. Because we are born like that. हस्बैंड एक कदम बढ़ाएगा, आप 4 बढ़ाओगे. बढ़ाओगे. इसमें ये एक चीज बोलना जरूरी है कि females should use their brain Hmm. equally since they turn into teenage, because it is very important. Usually लोग फायदा क्यों उठाते हैं, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हम बोलते हैं, या इन लॉज की फैमिली से जो फीमेल्स को ये सारा जो सफर करना पड़ता है, उसमें सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि फीमेल्स ऑलवेज थिंक फ्रॉम हार्ट. तो दिस इज माई एडवाइस टू ऑल द लेडीज, दैट जब से आप टीनेज में एंटर करते हो ना, उस दिन से you have to use your brain equally as you are using your heart. और वो सुनते नहीं है. They get emotional and that's why they get emotionally blackmailed. मैं छोटी थी तो मुझे याद है पापा ऐसा बोला करते थे कि तुझे तेरे सराउंडिंग से अवेयर होने की जरूरत है, तू बहुत भोली है, ऐसा he used to say that. And this is common even for today's girls, even today the college going girls, and if I see them now, अभी रिसेंटली अगर आपने ये केस भी सुना है, दैट गर्ल, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बॉयफ्रेंड कट हर इनटू पीसेस एंड केप्ट इन फ्रिज रेफ्रिजरेटर. Okay. दिस आल्सो होली के टाइम पर ऐसे न्यूज में आया था. उससे भी पहले का, ये तो काफी श्रद्धा या ऐसा कोई नाम था. Okay. तो उसमें भी ऐसा, बिकॉज दे गेट इमोशनल एवरी टाइम. तो ये जो परपेट्रेटर्स हैं, जो अब्यूजिव नेचर के हैं, ओके, आई वोंट से देम, बिकॉज दे आर ऑल्सो, व्हेन दे आर इन दैट एज, दे आर ऑल्सो बॉयज फॉर देयर फैमिली, ड्यू टू द सराउंडिंग एंड वॉट एवर थिंग्स कम विच दे कम अक्रॉस टू, दैट मेक देम अकॉर्डिंग टू दैट अब्यूजिव पर्सनालिटी में उनको वो बन जाता है. तो उस वक्त क्या होता है ना कि whenever they feel कि my girl is going to take some action, वो immediately आपको emotionally down कर देंगे. And once you are down, again they will repeat the same behavior. And it happens almost in all matrimonial dispute, domestic violence, I would particularly say. The same thing is going on.
टॉकिंग अबाउट मैरिटल रेप, Yes. आईपीसी 375 का अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था Right. अबाउट Marital rape. यस कि 18 साल की उम्र से ऊपर की कोई भी मैरिड लेडी होगी, सो इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट इनटू रेप. Right. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? बेसिकली कोर्ट ने जो जजमेंट दिया ना, तो उसमें ऐसा है कि देयर आर सो मेनी फैक्ट्स, वी नीड टू रीड द फुल जजमेंट विद द एंटायरिटी, तो ही वी विल कम टू नो कि व्हाट वाज पर्टिकुलर evidence and facts in that particular case. But in my personal opinion, it is not right, because in Marait, like we say, female's consent is really necessary. We are not commodities and we are also human. ठीक है, तो एक आदमी के साथ अगर जबरदस्ती नहीं होती है या कोई कर नहीं सकता है, तो एक औरत के साथ भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, गॉड नेवर डिफरेंशिएटेड, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इक्वल. हाँ, फिजिकली जो डिफरेंसेस है, दैट इज ऑल्सो फॉर स्पेसिफिक पर्पस. बाकी एवरी राइट वॉट एवर, आई मीन अगर हम ऐसे बात करें, तो अगर यही चीज हम मेन के बारे में बोलेंगे कि उनको भी ये अप्लाई करता है, तो दे विल नॉट टॉलरेट एंड दे विल ऑब्जेक्ट. तो ऑफ कोर्स इवन आई फील दैट फीमेल्स कंसेंट इज वेरी नेसेसरी. आवर लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस, डिजायर्स शुड बी गिवन इक्वल वेटेज. अग्रीड. अभी अपना हम दमन एरिया ही ले लेते हैं. सो दिस होल एरिया, दमन, सिलवास, वापी, वलसाड, दिस इज नॉट अ वेरी बिग मेट्रो एरिया. करेक्ट. तो इधर अवेयरनेस लोगों की बहुत कम है अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विमेन. वेरी ट्रू. सो हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड? See, basically, nowadays what happens, no, in every court, every district, there are even state legal authorities which are working. Paralegal volunteers are appointed and they go to each village, door to door, okay? And then we make them aware of different acts. Even we advocates, we are given that duty to go and we organize some small program, जहाँ पे हम अलग-अलग एक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, वेर वी इंक्लूड डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पॉक्सो एक्ट, क्योंकि उन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है. इफ द चाइल्ड इज नॉट नोइंग, इफ द पेरेंट इज नॉट नोइंग कि ये जो चीज है, ये हरकत जो मेरे बच्चे के साथ हुई है, ये कानूनन अपराध है, तो वो कभी कंप्लेन करने की सोचेंगे भी नहीं. तो उसके लिए ये एक चीज है कि इन स्कूल्स वी गो, बिकॉज नाउअडेज सी आफ्टर दैट राइट टू एजुकेशन, ये कंपलसरी हो गया है कि सारे बच्चे, इवन फ्रॉम दोज रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, उनको भी स्कूलिंग कंपलसरी है. और वो टास्क भी जो दिया है, तो गवर्नमेंट इज डूइंग रियली अ गुड जॉब, क्योंकि उसमें टीचर्स को भी वो ड्यूटी दी जाती है कि दे हैव टू गो इन पर्टिकुलर लोकेलिटी, दे आर बीइंग अलॉटेड, दे हैव टू गो डोर टू डोर एंड फाइंड आउट. और जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसको स्कूल लाएंगे. सो व्हेन दे कम टू स्कूल ऑल्सो, तो वी फ्रॉम कोर्ट, लाइक आई टोल्ड यू, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे हर स्टेट में भी होता है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो नालसा, डालसा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, सालसा. वी गो टू देम at different in panchayat also we organize such program, at school level. Even sometimes, you know, we cover the mohallas, like जो चौल एरिया है, तो उन सबको एक मैसेज जाता है, जो चौल ओनर है उनको बोला जाता है कि आपको सबको इकट्ठा करना है, एंड वी गो देयर, वी एजुकेट देम एंड वी इन्फॉर्म देम कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यू शुड नॉट सिट क्वाइटली, आप इमीडिएटली रिपोर्ट करो, एंड दैट इज द ओनली वे आउट. और वी हैव सक्सीडेड ऑल्सो इन दैट, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी काफी लोगों में, व्हेन वी गो टू स्कूल, तो वी टेल द चिल्ड्रन, दे गो होम, एंड वी ऑलवेज, यू नो, इंक्लूड दिस पॉइंट दैट व्हाटएवर नॉलेज वी आर गिविंग यू, डोंट restrict it to yourself, give it to somebody else, अपने नेबर्स में या कहीं पे, एंड देयर वी एजुकेट देम कि क्या क्या ऑफेंसेस हैं, लाइक यू नो, इन पॉक्सो और इवन इन पॉश एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट. उसमें आई टेल यू वन पॉइंट कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अदर जेंडर शुड टच यू तो ही ऑफेंस बनेगा, ऐसा नहीं है. इवन इफ द मैन इज मेकिंग सम जेस्चर और ही इज, यू नो, शोइंग सम porn picture or some video clip or anything, or passing any such comment, that is also covered as offense in that particular act. हाँ, so coming to POSH Act only. Yes. 2013 Yes, में आया था. 13. हाँ, तो आपने जैसे बताया कि इवन शोइंग अ पिक्चर और Yes. पासिंग अ कमेंट ऑल्सो Yes. काफी है.
So what if a woman is experiencing it at a workplace? उसके किसी सुपीरियर ने किया या किसी सबऑर्डिनेट ने भी किया, so Correct. what should she do? See, basically now the government has made it compulsory that every employer where 10 से ज़्यादा female employees हैं, तो it is compulsory for that organization to have an internal complaint committee. इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया है कि जिसमें कंपनी की जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो लोग रहेंगे, बाहर से भी एक मेंबर अपॉइंट होता है. तो इमीडिएटली दे शुड गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इंसिडेंट होने के दूसरे ही दिन उनको कंप्लेंट करनी है. इवन इफ द कंप्लेंट इज लॉज्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, इट विल बी एंटरटेन, देयर विल बी अ डिसिप्लिनरी एक्शन, इंक्वायरी होती है उसके बारे में. As we are aware now, every employer, matlab every organization and company, they have the CCTV cameras also. Other evidences are also collected, and after completing that inquiry proceeding, and accordingly, जो employee है, जो culprit है, उसके अगेला हम कोई action लेते हैं. Okay. It is done even at the level of employer. और अगर जो female चाहे internal committee में नहीं उसको complain करनी है to spoil because कुछ और प्रेशर होगा अपने सुपीरियर से, then she can directly go to the police also and she can lodge a complaint. Now we see that there are many helpline numbers also in all different states. अलग अलग, जैसे निर्भया हेल्पलाइन है, गुजरात का नंबर है, and that way also they can. And in any case, 100 police control room is always available to you. Yes. So that way also you can file your complaint. और मेन जो चीज है ना, वो मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे यहाँ ना औरतों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. कंप्लेन हमारे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं ना, तो यू नो दिस विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू आल्सो व्हेन आई आस्क कि व्हाई डिड यू टॉलरेट, व्हाई डिडंट यू रिपोर्ट दैट, तो वो क्या बोलते पता है, डर लग रहा था कि मैं झूठी साबित हो जाऊंगी. इफ यू आर द विक्टिम and if the opposite person has done something, मतलब it is the fact, it is the truth, then you should first leave that fear. और क्योंकि ये कंप्लेन नहीं होती है, इसलिए ऐसे जो पर्सनालिटीज है ना, दे गेट मोर, उनको और हवा मिलती है कि वी कैन डू एनीथिंग और कुछ होने वाला नहीं. तो अगर जैसे मैंने बोला कि प्रिसाइज चीजों के साथ अगर आपने कंप्लेन की है, देन इट इज डेफिनेट दैट इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड. बेस्ट अभी आपने जो बताया वो वही था कि कुछ भी वो लिख के रख लेने का, डेट, टाइम, इंसिडेंट, एवरीथिंग. सो दैट विल हेल्प यू एंड दैट वे यू कैन प्रूव योर केस इन अ बेटर वे. अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था दैट ग्रैबिंग ब्रेस्ट्स एंड स्नैपिंग पजामा स्ट्रिंग इज नॉट कंसिडर्ड एन अटेम्प्ट टू रेप, एंड द सुप्रीम कोर्ट आल्सो डिड नॉट लाइक इट, they criticized it. So what is your take on this? See, in my personal opinion, I feel every girl, every female would object to this particular judgment. I'll share with you one case. Recent case में ऐसा हुआ कि unfortunately it happened in some hospital. ठीक है, the guard, the mother was admitted to the hospital, और वहाँ का जो वॉचमैन था उनके साइड के, मतलब वो एक ही कल्चर के थे, तो वो जो छोटी बच्ची आई थी 8 साल की, the age of the girl was 8 years. What this guard did, you know, कि उसने बच्ची को लेकर गया ऊपर कोई रूम में, एंड बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, पर उसने जो भी एक्ट किया, ही रिमूव द क्लोथ्स ऑफ दैट चाइल्ड, खुद के कपड़े निकाले उसने, एंड देन देयर वाज दिस टेक्निकल क्वेश्चन, हम लीगल लैंग्वेज में ऐसे बोलते, दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, लाइक व्हाट ही डिड दैट, ही डिड नॉट पेनिट्रेट, ही डिस्चार्ज्ड ऑन दैट गर्ल्स थाई. Okay. तो इस पे पहले तो बहस हुई कि ये रेप तो नहीं होगा क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं है. एंड यू नो, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ chairperson of child welfare committee, a mother, a female, I was thinking कि ये क्या बात हुई. Can you imagine the damage you have done to that 8-year-old child girl? उसका कोई compensation नहीं है, and you are talking about this कि ये रेप नहीं हो सकता because there is no penetration. यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े बदलाव की जरूरत है. वी मस्ट थिंक दिस कि टेंडर एज में ऐसे एक्सपीरियंस होना ये बच्चे के लिए, नाउ व्हेनेवर दैट गर्ल wherever she will go, उसके लिए ये चीज को भुला पाना, She is damaged for life. लाइफ, और उसमें ये चीज आती है कि ये रेप नहीं है.
बहस ये हो रही थी कि ये रेप नहीं है बिकॉज देयर इज नो पेनिट्रेशन. सो दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर एवरी एज ग्रुप. ठीक है, किसी को जबरदस्ती पसंद नहीं है. वी आर नॉट एनिमल्स. इवन एनिमल्स लव देयर फ्रीडम. लाइक इफ वी गो इन जू तो एनिमल्स वहां पे जितने खुश है उतने जू में नहीं होते जितने जंगल में है. तो वी आर तो ह्यूमन. तो हमारे लिए भी वो बहुत जरूरी है कि हमें अगर कुछ नहीं पसंद है तो दैट शुड बी द एज ऑफ द विक्टिम शुड बी कंसिडर्ड बिफोर गोइंग टू दैट टेक्निकलिटी कि ये रेप में इसको डाले या नहीं डालो. एंड दिस थिंग वॉज वेरी रिसेंट विच आई शेयर्ड विथ यू. तो देर आर सर्टन एस्पेक्ट बट वो है कि अभी बदलाव आने में तो काफी टाइम लगेगा और हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए. बट आई थिंक अवेयरनेस बढ़ रही है और डिजिटल एज के साथ थोड़ा फायदा तो होता ही है. See what happens, no हाँ. सौम्या, अवेयरनेस तो काफी बढ़ रही है पर अभी भी क्या होता है ना कि देर आर इन आवर कंट्री यू माइट हैव सीन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. लाइक वी हैव इन द सेम सोसाइटी हमारे पास मेड है, वॉचमैन है, जो ग्रोसरी वाला आता है या जो वेजिटेबल वेंडर आता है. दे आर स्टिल बिलो दैट सर्टन क्लास. तो उनके लिए क्या होता है पता है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है एंड यू नो बीइंग एन एडवोकेट इवन इफ आई एडवाइज समबडी कि नो आप कंप्लेन करो आई विल हेल्प यू. जाने दीजिए मैडम, नौकरी पे छुट्टी लेना पड़ेगा, उतना वक्त नहीं है, स्कूल खराब होगा बच्चे का बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग दैट मच. वो जो फाइनेंशियल जो डिफरेंस है ना वो उनको रोकता है. दे आर मोर इनटू कि हमें हमारी डेली नीड्स मीटअप करनी है. तो रादर देन गोइंग इन ऑल दिस और हमारा बाकी सारा स्केड्यूल भी हमारा खराब होगा. एवरीबडी हैज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिमिटेशंस एंड ऑल. तो उसी वजह से भी काफी लोग आगे नहीं आ पाते. दे आर अवेयर ऑफ द राइट्स. दे आर अवेयर कि हम एक्शन ले सकते हैं बट स्टिल दे डोंट ऑप्ट. So, coming to your duties as the chairperson of the Child Welfare Committee, what are the most pressing issues that are affecting children nowadays? One most important thing which I have noticed is either boy or girl, they are being sexually exploited by the family members. ये जो अभी हो रहा है ना ये एक्चुअली और बिकॉज वो फैमिली मेंबर है ना तो इन सम सर्टेन केसेस तो बच्चे को पता भी नहीं है, उसकी एज ही नहीं है टू अंडरस्टैंड दैट कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ मी. फॉर देम इट इज नॉर्मल बिकॉज फैमिली है. फैमिली को अगर बच्चा ट्रस्ट नहीं करेगा तो और किसको करेगा. So this is one point which I came across. Second thing is, ये अभी जो after this pandemic, you know, we gave mobile to all the students of all age. उसकी वजह से क्या हुआ पता है, एक ये जो नया न्यूसेंस जो सोसाइटी में I am observing is that in teenage they fell in love and then चलो घर से भाग जाते हैं, शादी करेंगे. They don't know life is not that easy. वो जो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं होता है. And there are so many cases, you know, यूपी से बच्चे भाग के आ जाते हैं दमन, वापी, फिर पुलिस में कंप्लेन होती ढूंढते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नो लाइक अभी एक और केस मैं आपसे डिस्कस करूंगी. क्या होता है कि 14 साल की लड़की और लड़के की एज होगी 18 साल. नाउ बोथ आर माइनर लीगली क्योंकि उससे 18 कंप्लीट नहीं हुए, ये 14 साल की है. वो घर से भाग गए, हम शादी करेंगे. क्यों? नाउ द गर्ल स्टेटमेंट वॉज मम्मी ने मुझे लड़के से बात करते हुए देख लिया एंड शी सेड कि मैं तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी, नहीं करनी है पढ़ाई. तो शी सेड कि नहीं ये तो गलत होगा एंड शी डिसाइडेड टू रन अवे विद द गाय. अब ऐसे केस में क्या होता है देखो, व्हेन आई मेट द बॉय तो मुझे लगा कि द बॉय इज क्वाइट सिंसियर एंड काम. वो भगा के ले जाने वाले में से तो था नहीं, बट द गर्ल इज मोर स्मार्ट. अब लड़की ने उसको बोला कि नहीं जाना ही है, ये करना है. दैट बॉय अग्रीड एंड दे बोथ. अब ऐसे किस्से में क्या होता है पता है, पर्टिकुलरली द सोसाइटी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट फीमेल होती है और सबसे ज्यादा सिंपैथी भी फीमेल से साथ ही है. ओके तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लड़की के पेरेंट्स है ना वो हमेशा कंप्लेन लॉन्च करते हैं कि मेरी बेटी को किडनैप कर दिया, मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया. ऐसे केसेस में क्या होता है कि पुलिस हैज टू टेक एक्शन. अब वो जो बच्चा है 18 साल का, वो भी स्टूडेंट था, उस पे लग जाएगा पॉक्सो एक्ट. अब सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, एविडेंसेस आएंगे, इट विल टेक फ्यू इयर्स. इन केस अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई है लाइक इवन द किसिंग और या वैसे फिजिकल कुछ उनका क्लोजनेस है, उस केस में दैट बॉय विल बी बिहाइंड द बार्स फॉर 20 years.
उसका पूरा करियर गया, उसके पेरेंट्स की पूरी मेहनत गई, यूथ गया, गया। सो इन सर्टन केसेस हमेशा पर्टिकुलरली अभी तक तो मेरा भी यही मानना था कि नहीं ये लड़कों को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन आई वाज हैविंग दैट चांस टू इंटरेक्ट विद द बॉय, तब मुझे ये लगा कि आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ अ बॉय। बच्चा ऐसा था ही नहीं, वो भी पढ़ाई में होशियार था। What if it were your child? करेक्ट। सो दैट वे लाइक कि आई फेल्ट कि एक्चुअली ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि ऐसा कुछ होता है तो तुरंत सारा वो ऑलवेज द एक्यूज्ड इज द बॉय एंड द गर्ल इज विक्टिम। हमेशा ऐसा नहीं है। आफ्टर गेटिंग मोबाइल इन हैंड पेंडेमिक के बाद गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी फॉरवर्ड, उनके भी काफी सारे थिंकिंग और एटीट्यूड और हर चीज में बदलाव है। तो अभी जैसे एवरीबडी हैज अ फोन, एवरीबडी हैज अवेयरनेस ऑल्सो। करेक्ट। तो जैसे कि हमने रेप की बात करी, हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, तो आपको ऐसा लगता है कि जो लॉज, देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट विमेन, तो आर देयर विमेन जो उन लॉज को मिसयूज करके भी कुछ कभी कभी ऐसे मनी एक्सटॉर्शन की कोशिश करती हैं? हैव यू कम अक्रॉस सच केसेस? सर्टनली, फॉर्चुनेटली मेरे पास पर्सनली ऐसा कोई केसेस नहीं है, बट एज आई एम अवेयर लाइक फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड ऑल, व्हाट knowledge I could gather is that yes, nowadays females are taking advantage of this acts. तो अभी जो मैंने केस बताया वो भी वही है ना, कि लड़की ज्यादा स्मार्ट है, तो लड़की ने उसको फोर्स करके बोला कि यू टेक मी, एंड दे प्रोवोक लाइक तू लड़का है फिर भी तू डरेगा, एंड दैट वे। अब इस केस में भी सेम ही होता है। सो नाउअडेज देयर आर मेनी केसेस वेयर फीमेल्स आर अननेसेसरीली हैरेसिंग। जुडिशियरी हैज द पावर, ठीक है, पर हमारे लिमिटेशंस क्या है ना, इन कोर्ट रूम व्हेन वी सी, तो इन सर्टन केसेस इवन आई हैव सीन दैट कि मैं इवन इफ आई नो द फैक्ट, मैं जज को बता भी रही हूँ, जज समझ भी रहे हैं, पर हमें चलना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड नॉर्म्स और एक्ट्स जो एविडेंसेस रिकॉर्ड पे है। तो इवन आफ्टर द जज नोइंग द ट्रुथ, उनको वर्डिक्ट तो वैसे ही देना है जो एविडेंसेस रिकॉर्ड पे है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मतलब इसीलिए शायद हर चीज का वर्डिक्ट बहुत लेट आता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, क्योंकि लोग ऐसे झूठे केस भी डाल सकते हैं। हाँ, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज गिवन टू बोथ द साइड्स टू प्रूव देयर केस। पर क्या होता है कि इन सर्टन केसेस लाइक कि जैसे हम देखते हैं कि ब्राइब एंड दिस एंड दैट, तो इवन द फैक्ट्स आर ट्विस्टेड। तो ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि कभी कभी जुडिशरी में भी वी फेल इन दैट, बट मैक्सिमम वी ट्राई कि जितना हो सके उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी दो, बट एज आई टोल्ड कि वी हैव टू गो बाय द बुक। यस, तो दैट वे द ऑल द वर्डिक्ट्स आर गिवन अकॉर्डिंगली। coming to POCSO. Yes. So I did my post graduation in सिल्वास में अंदर कलोंडा और खानवेल, दूधनी, ऐसे सब बहुत रिमोट एरियाज हैं। Yes. ठीक है, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन धर्मपुर। Okay. तो उधर से भी पूरा हिली ट्राइबल रास्ता और आगे बहुत आवा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और जगह आती है। सो हिल्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, वेरी रिमोट विलेजेस। Right. व्हाट केसेस वी कम अक्रॉस एज गायनोकोलॉजिस्ट्स आर, हमारे पास लड़की आती है 14 साल की उम्र में, एंड शी इज प्रेग्नेंट। देयर वाज अ केस जहां उसको कभी पीरियड भी नहीं आया था लड़की को, एंड शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी वाज देयर टू गेट डिलीवर्ड। सो देयर आर सच केसेस, एंड द पेरेंट्स दे डोंट वांट टू डू अ पुलिस कंप्लेंट, बट एज गायनोकोलॉजिस्ट्स इट इज आवर ड्यूटी। तो हम लोग पुलिस रिपोर्ट करते थे, पुलिस यूज्ड टू कम, they used to talk to the families. So the cases were very amicably handled by the gynecologists, by the police department, and by the families. It is not coming in the mainstream media. I don't think people know about it, that such things happen. As I told you, see what happens, the society has to change. Still we have those people जो अभी भी 50 साल पहले की थिंकिंग रखते चलते हैं कि पुलिस स्टेशन जाना नहीं, हाँ, लड़की हमारी बदनामी हो। बदनामी, डेफिनेटली बदनामी जैसा कुछ नहीं है। If something is wrong, you unless and until you will say कि this is wrong and I'm not going to tolerate, that thing will continue. तो ऐसे केसेस में I feel कि rather than educating the children, the education should go to the parents.
बट एक चीज हमने नोट करी है कि दे आर वेरी रिजिड टू लर्न न्यू थिंग्स. दे आर नॉट इवन एबल टू कॉपी आर ड्रेसिंग अटायर, वो कॉपी नहीं कर सकते, तो थिंकिंग और माइंडसेट वो चेंज बहुत दूर की बात है. बहुत दूर की बात है. दैट वी विल हैव टू फेस फॉर फ्यू इयर्स. आई थिंक कि जिस तरह से अभी तो गांव अभी जो सरकार है गांव पहुंच रहे हैं, हर गांव में लाइक इंटरनली इफ यू गो नो टिल द लास्ट विलेज यू विल फाइंड कि हाँ नाउ पंचायत इवन देयर आल्सो दे गिव दैट. पता है ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये जो गांव में जो पंचायत होती है, इन बिटवीन आई गॉट अ चांस टू स्पीक टू सम फीमेल्स. सरपंच फीमेल है बट शी नेवर गोज टू ऑफिस. हर हस्बैंड है हैंडलिंग पूरा हस्बैंड करेगा. हस्बैंड बोलेगा यहाँ साइन कर दो, शी विल साइन एंड दैट इज द वे. अब ऐसे में यही होता है कि एज आई टोल्ड यू नो, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर माय राइट्स. यू शुड बी रेडी कि मुझे मेरे राइट्स इंप्लीमेंट करने हैं. एक्ट अपनी जगह पर है, कोर्ट अपनी जगह पर है, पुलिस अपनी जगह पर है. until I go to them and tell them कि मेरा ये राइट इन्फ्रिंज हुआ, they cannot come into action. उनको पता ही नहीं है वो क्या रहा है. सरकार आपके लिए कुआं बना सकती है, आपको पानी लाकर नहीं दिला सकती. आपको खुद लाना पड़ेगा. अच्छा, लेकर आने के बाद भी अगर दूसरे लेके जा रहे हैं और आप कुछ नहीं करोगे तो दैट इज योर फेलियर, नॉट द गवर्नमेंट या जुडिशरी का भी वो फेलियर नहीं है. ऐसे ही हमारा भी होता है दैट वी ऑल्सो डू कैंप्स, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस कैंप्स, कैंसर वैक्सीन अवेयरनेस कैंप्स. तो फिर भी लोग दे आर वेरी रिलक्टेंट, नहीं लगवाते हैं. हाँ, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. एंड यू नो व्हेन वी सी देम नो, लाइक इन माय प्रोफेशन, ठीक है, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, आपके प्रोफेशन में आपके जो पेशेंट होते हैं, व्हेन वी सी देम इन पेन, तो हमें लगता है वी शुड डू समथिंग फॉर देम. हम तभी कर पाएंगे जब वो हमें अलाउ करेंगे. They don't want us खुद to अपने लिए कुछ करेंगे. हाँ, ये डेफिनेटली. चीज है. वी कैन शो देम द पाथ कि आगे गड्ढा है, पर अगर उनको गिरना ही है तो वी कैन नॉट स्टॉप देम, बिकॉज वो लिबर्टी तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि यू आर फ्री टू चूज. सो डिजिटल वर्ल्ड की आपने बात करी, तो देयर वाज दिस सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स अभी रिसेंटली, अडोलेसेंट. तो उसने बहुत ऐसे रेज क्रिएट किया सोसाइटी में भी. सो हैव यू वॉच्ड इट? Yes, in fact, I have seen the series, and why I am surprised is everyone is appreciating that series. आपका एवरीबडी शुड हैव. Having मतलब everyone has the right to have different perception. मेरा ये मानना है कि parenting, particularly for that series, okay, कि parenting is a very crucial job. इसको lightly नहीं ले सकता, ठीक है. Whatever the children are doing. इन सम एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे फैमिली का वैसा कोई और इन्वॉल्वमेंट, इवन इन दिस सीरीज आई डोंट फाइंड दैट पेरेंट्स आर एट फॉल्ट, पर यू शुड हैव अ कांस्टेंट वॉच ऑन योर चाइल्ड. ये जो एक चीज आ गई है ना, जो नाउअडेज वी सी इन सोसाइटी, दैट इवन व्हेन आई गो टू होटल्स आई सी दैट पेरेंट्स आर ईटिंग, टॉकिंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद On the मोबाइल phone. और आईपैड. ये जो चीजें है ना, ये हमें अवॉइड करनी, क्योंकि देयर वी आर नॉट नोइंग कि वो बच्चा अपने दिमाग में क्या फीड कर रहा है. अग्रेसिवनेस, एंगर इश्यूज, ये एंजाइटी, ये सब बच्चों में आता कहाँ से? So talking about one case that happened in Dungra, Valsad. So there was this 70-year-old man. ओके, 70. 70. Hmm. He was 67 years old at that time and he had raped an 11-year-old girl. एक neighborhood था, उसमें वो उस आदमी की दुकान थी and she used to go to that shop, groceries और डेली का सामान लेने के लिए वो जाती थी. उसके मम्मी पापा उसे भेजते थे. So one day she got raped there. तो उसका verdict अभी आया है, like after 3 years. So that man is guilty of it और उसको अभी सजा हो गई है. So is our judicial system slow in this or is it fast for them? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि वो एक बार चालू होता है, वो 10-10 साल तक खींचता रहता है, पर यहाँ वर्डिक्ट 3 साल में आ गया है. तो इट इज कंसिडरेबली, इट इज अ वेरी फास्ट वर्डिक्ट. एक्चुअली देयर इज अ गाइडलाइन कि पॉक्सो केसेस में देयर इज अ टाइम लिमिट गिवन कि आपको इतने दिन में हियरिंग कंडक्ट करना है, इतने दिन में उसकी चार्जशीट फाइल होगी. इट इज देयर, बट एज आई टोल्ड यू नो, जुडिशियरी में एक लिमिटेशन जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, उन पे ये भी रहता है कि बोथ द पार्टीज शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी. हमारी कल्चर के हिसाब से या हमारे देश की जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका मेन एम क्या होता है कि कोई निर्दोष को सजा ना मिले. ये उनका मेन एम होता है. इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. यस,
तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो देरी जो होती है वो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से होती है। और बाकी तो एज सच वी सी इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ पेंडेंसीज लीगल फील्ड में, उसके सामने हमारे पास जजेस बहुत कम हैं, तो वो भी एक रीजन है कि क्यों डिले होता है। ओके। ठीक है, बट आई फील कि द बेस्ट वे इज लाइक कि टू बी डिपेंड ऑन अदर्स लाइक जुडिशियल सिस्टम, पुलिस एंड ऑल। बहुत सारी चीजें होती रहती है विच वी आर नॉट अवेयर। तो द बेस्ट पार्ट इज लाइक पेरेंट्स हैव टू बी मोर अवेयर अबाउट द चिल्ड्रन। बच्चों को जिस तरह से एक जो पहले जो एक बैरियर था पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, दैट शुड गो। एक जमाना था जब ऐसे था एक टाइम पे कि पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे, लाइक इवन यू माइट हैव फेस्ड, आई उस जमाने में आल्सो फेस द सेम थिंग। हम नहीं परमिशन ले पाते थे अपने पापा से कि पिकनिक जाना है। वी यूज्ड टू लिटरली गेट स्कैर्ड। हाँ, मुझे कभी नहीं मिली परमिशन। इवन आई वाज नेवर गेटिंग। ट्रू। अभी ये जो है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आई स्टार्टेड बीइंग विद चिल्ड्रन एट वेरी अर्ली एज, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि बहुत जरूरी क्या है एज अ पेरेंट कि आपका बच्चा खुल के आपको बता पाए। तो वो एक जो थिन लाइन है कि कितना स्ट्रिक्ट रहना है और कितना ओपन रहना है। बट आफ्टर हैविंग इंटरेक्शन विथ माई 2 चिल्ड्रन, व्हाट आई फील इज कि स्ट्रिक्टनेस वाला पार्ट अगर निकाल देना तो वी विल बी एबल टू नो अवर चाइल्ड बेटर एंड दे कैन हियर टू अस फ्रीली। Like I tell you, like when my son was in MIT, he did his engineering from Pune. Pune is also metro city, बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे एकदम। और दमन से निकलकर बच्चा up to 12th class he was in Daman when he went there. So he used to literally tell me, मम्मा मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं। किससे बात कर रहा था? मम्मी से बात कर रहा। तेरी मम्मी से तू ऐसे बात करता है? And that I feel कि that really gave me some benefit. इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है, पर फिर भी मुझे फायदे ज्यादा हुए टू बी दैट फ्री विथ माई चाइल्ड कि दे कैन कम एंड टॉक टू मी एनीथिंग। उसके बाद आप डिसाइड करना है कि इसमें अपने बच्चे के साथ कितना स्ट्रिक्ट रहना है और जो कल्प्रिट है उसके साथ कितना स्ट्रिक्ट रहना है। तो अभी यही क्वेश्चन आता है ना कि वो तो उसकी मम्मी उसको सामान खरीदने ही तो भेज रही थी, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं भेजा कि तू जाके लेकर आ। माई ब्रदर वाज सेंट कि ठीक है चल ले 5 रुपए जा कुरकुरे का पैकेट ले आ। तो हम हमेशा झगड़ा करते थे कि आप हमें नहीं भेज रहे हो, आप उसको भेज रहे हो। हाँ. तो वो बोलते थे कि वो लड़का है बेटा। हाँ, तो हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन केजिंग योर चाइल्ड, कि जहां आपके बच्चे को लगे कि उसको पिंजरे में बंद कर रखा है, और एंड लीविंग द चाइल्ड ओपन, ससेप्टेबल टू ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द सेम स्टेटमेंट कि मेरे हिसाब से ना पेरेंट्स आज के सिनारियो के चलते पेरेंट्स को थोड़ा लिबरल होना चाहिए। जितना आप अपने बच्चे के साथ लिबरल रहोगे उतना आपका बच्चा खुल के आपको बता पाएगा। इवन इफ द नाउअडेज अभी हमने देखा है कि ये नया ट्रेंड चला है सिंगल चाइल्ड, एवरीवन वांट्स सिंगल चाइल्ड। लाइक माय सिस्टर शी इज आल्सो हैविंग 1 डॉटर, माय हस्बैंड आल्सो हैज अ सिंगल चाइल्ड। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी बेटी है तो आप उसको घर से बाहर नहीं निकालोगे। मैं मानती हूँ कि माहौल बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है, हाँ तो क्या है, बट स्टिल वी नीड टू मेक हर कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस दैट। तो उसके लिए अगर कभी को घर से निकलेंगे ही नहीं, लाइक हाउ वी से कि बोट्स आर नॉट मेड कि उसको किनारा पर बांधा जाए, जब पानी में जाएगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज देयर ओनली गोल। तो अभी आज के, और दूसरा कि ड्यू टू द इन्फ्लेशन ये सिंगल चाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है फॉर एनी पेरेंट कि अपने बच्चों को घर में बिठा के रखे। पर उनको जैसे मैंने बताया कि हम ये सालसा नालसा से भी हम जाते हैं एजुकेट करने, तो छोटे बच्चों को भी हम ये एजुकेट करते, गुड टच बैड टच, वो भी हमारा एक रहता है एजेंडा। तो इस हिसाब से ना, और जितना ज्यादा बच्चे खुल के बात कर पाएंगे ना, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि फैमिलीज में जो ये जो होता है एक्सप्लॉयटेशन, वो बच्चे बात नहीं कर पाते। वो इसलिए भी बात नहीं कर पाते क्योंकि अगर सपोजिंगली कि फॉर एग्जांपल
कोई मुझसे भी बड़ा है, इफ आई एम रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन सो मच, देन माई चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू टेल मी कि वो देख रहा है कि मम्मा तो इनके सामने इतना लिमिट में रहते हैं तो हम बात नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट इट इज वेरी नेसेसरी फॉर टुडेज पेरेंट्स टू बी मोर फ्री. आपको स्ट्रिक्ट रहना है उसके ग्रेड्स को लेकर, पर वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि मैंने देखा है वो एक एक मार्क्स के लिए बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, फिर उसमें वो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सुसाइड वाला वो वाला शुरू हो जाता है. So for everything, and you should understand your child better. मतलब if I put it in better words, तो this is the right statement कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छी तरह समझो. That is the only best way. आपको उनको बाहर तो भेजना ही है. You cannot restrict क्योंकि उसको अगर सेल्फ सफिशिएंट भी बनाना है. Nowadays it has also started कि सारे जो ये आफ्टर स्कूल आपके जो सारे कोर्सेज हैं वो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसीज और ये सब हो गया है. चाइल्ड हैज टू गो आउट फॉर स्टडीज डेफिनेटली. ठीक है, और बाकी सारी चीजों के लिए भी. तो उसमें ये चीज है कि आपको जितना अपने बच्चों को अच्छे से जान पाओगे, लाइक बीइंग अ मदर, आई थिंक एवरी फीमेल हैज दिस क्वालिटी कि हमारा बच्चा जब बात करता है ना एट एनी एज वी अंडरस्टैंड कि ये घुमा रहा है या ये सच बोल रहा है या ये डरा हुआ है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज बोथ द मदर एंड फादर, वी ऑल आर वर्किंग, हम बिजी हैं, तो हम जब वो ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो भी एक रीजन है कि बच्चा खुल नहीं पाता है. ये जो पर्टिकुलर आपने मुझे किस्सा जो बताया, दैट इज समथिंग, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू से. एंड कंसिडरिंग द एज ऑफ दैट मैन, अब अगर उसको सजा भी हो गई, बट व्हाट, ही हैज ऑलरेडी लिव्ड हिज लाइफ, अब क्या सजा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है. पर ये चीज बहुत नेसेसरी है कि आप बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, उनके एक रेगुलर इंस्पेक्शन जो हमारे पेरेंट्स भी करते थे वो तो होना ही चाहिए कि हमारे बच्चे किससे मिल रहे हैं, फ्रेंड्स कौन है. और साथ में ये चीज है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना मेरा बच्चा मुझसे फ्रीली बात करेगा उतना ज्यादा वो मुझे बता पाएगा. डेफिनेटली. यस, एंड नाउअडेज वो वाला जो पॉलिसी है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं मुझे ये चाहिए, अदरवाइज यू डोंट कम टू मी, लाइक दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. नहीं, नाउ यू हैव टू टेल देम बेटा एनीथिंग हैपेंस आई एम देयर. अभी आजकल तो वैसे जेंटल पेरेंटिंग का काफी ट्रेंड चल रहा है. ट्रेंड है, वो अवेयरनेस वो भी बढ़ा है. हाँ. उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कम हुए हैं. सो दैट इज द ओनली बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड. डेफिनेटली. सो कमिंग टू द डिवोर्स रेट्स इन इंडिया. सो पहले अपने देश में थोड़ा टैबू रहता था कि डिवोर्स नहीं होने चाहिए. अभी थोड़ा डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं. डू यू थिंक? थोड़ा नहीं, इनफैक्ट डिवोर्स रेट्स ज्यादा भी हो गए हैं. देयर आर टू साइड्स व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय प्रोफेशन. कि एक साइड ये है कि जहाँ पे यू नो लाइक एज व्हाट यू सेड कि वो पहले वाला कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. नहीं हुआ ठीक मम्मा, हाँ तो ठीक है, फिर से कोशिश करो, थोड़ा और टाइम जाने दो, अभी तो इतने ही साल हुए हैं. नो, दैट इज समथिंग in my personal opinion is wrong. Because क्या होता है ना, सी सौम्या, कि एक गलत हरकत हुई और मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, then I am giving more liberty to that person कि वो सेकेंड स्टेप ले आया है. तो ये एक चीज है. और दूसरा ये भी हो रहा है कि ऑन दी अदर हैंड, ये मैं एक हमेशा से देखती आई हूँ कि अर्ली डिवोर्स, लाइक विद इन 3 months, विद इन 6 months, क्या हुआ? You have not even given sufficient time to know each other. एक एक पॉइंट को लेकर उसमें ये सारी चीजें आती है, ईगोइज्म, फिर हमारे ये मोबाइल का जो न्यूसेंस है, दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. तो उसी के चलते मुझे लगता है कि आजकल ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, इनका काफी दुकानें चलने लगी है. बिकॉज बट व्हाट दे से इज वेरी मच करेक्ट कि हर रिश्ते में ना, सी एज एन इंडिविजुअल हम जो बात करते हैं वो क्या है, वी आर टॉकिंग लाइक जनरली, बट एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है कि पहले खुद के प्लस माइनस देखो, खुद के बाउंड्रीज सेट करो और फिर सामने वाले को भी मौका दो. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक इन यू विल बी सरप्राइज, लाइक मेरे पास डिवोर्स के लिए जितने केसेस आते हैं, लाइक व्हेन दे हैव अ बिग फाइट एट होम, हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में आ जाते हैं ऑफिस में, हमको डिवोर्स लेना है. यू वोंट बिलीव, आउट ऑफ 10, 6 कपल्स को तो मैं
काउंसलिंग करके भेज देती हूँ एंड दे आर हैप्पीली लिविंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो समझ में आता है हमें जब हम बात करते हैं, व्हेन वी इंटरेक्ट विद देम, तो हमें समझ में आता है कि इश्यू है ही नहीं, आप में टॉलरेंस नहीं है, ठीक है. सो आई समटाइम्स आई टेल द कपल, इफ द आइदर द वाइफ और द हस्बैंड, कि आपने गलती की तो यू वांट ना कि शी शुड फॉरगिव एंड शी शुड नॉट टॉन्ट यू बैक, यू डू द सेम थिंग, तो फर्क पड़ जाएगा. और दूसरा कि डिवोर्स, मुझे क्या लगता है पता है, वेन एवर अ डिवोर्स हैपन्स तो हस्बैंड और वाइफ का ज्यादा कुछ नहीं चाहता है, बट इफ देयर इज एनी चाइल्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेडिंग, दैट मैरिड लॉक, उस पे बहुत असर होता है. और मैंने मेरे पास जो मैंने बोला कि आउट ऑफ 6 केसेस में, तो उसमें 2-3 केस में ज्यादातर मुझे यही बोलना पड़ा, यू हैव पर्सनल प्रॉब्लम, शी इज हैविंग पर्सनल प्रॉब्लम, ओके लीव इट, बट योर चिल्ड्रन आर देयर. तुम लोग अकेले होते तो मैं इजीली बोल देती चलो हम डिवोर्स फाइल कर देते हैं एंड यू बोथ गेट सेपरेटेड, बट नाउ व्हाट अबाउट द चाइल्ड, उसका क्या कसूर है. एंड मे बी आई यू नो आई जस्ट लव चिल्ड्रन, तो मेरा हमेशा फर्स्ट वो रहता है कि पहले बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने कोप अप कर पाएंगे इन चीजों को. इफ दे आर इन टेंडर एज तो इसका एक बहुत बैड इम्पैक्ट उनके लाइफ टाइम उनके दिमाग पे रहता है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड. और बाकी जैसे मैंने बोला कि नया जो सिनारियो है उसमें ऐसा है कि जो पहले हमारे कंट्री में होता था ना कि डाउरी डेथ, बहुओं को जला देते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने अवेयर करना शुरू किया कि ये गलत है, ये गलत है. अब इतना ज्यादा अवेयरनेस हो गया है कि पेरेंट्स अपने जो गर्ल चाइल्ड है, मतलब अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, एंड देन द अदर थिंग कम्स, अच्छा उसने ऐसे बोला, आजा तू घर पे, मतलब योर फादर इज स्टिल अलाइव, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ यू, आ जाओ. तो ये भी एक इश्यू होता है. माई बेस्ट एडवाइस टू ऑल द कपल्स इज दैट कि खुद के माइनस पॉइंट्स आपको पता है, आपको चाहिए कि आपको इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए माफ किया जाए, तो कंसीडर इट फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो. एंड पर्टिकुलरली डिवोर्स के लिए तब सोचना चाहिए व्हेन यू डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, बिकॉज यू बोथ कैन रीस्टार्ट योर लाइफ. बट अगर आपके बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा एडजस्टमेंट, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ काफी जी ली, अब उसके लिए वो बिगिनिंग में ये उसको शॉक देना, तो उसकी लाइफ में काफी उसका असर होता है. तो ये चीजें हैं. टॉलरेंस तो वैसे सब में ही कम हो गया है. अब आपने देखा होगा पार्किंग के लिए भी लोग इतना बड़ा इश्यू कर लेते हैं. बट इफ समवन हैज हैड इनफ कि पानी ऊपर तक आ गया है, देन नाउ आई जस्ट वांट देम शुड लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो एज अ मतलब कि उसने शी हैज चिल्ड्रन ऑल्सो, बट शी हैज डिसाइडेड टू लीव दैट पर्सन फॉर गुड, राइट, फॉर हर ओन गुड एंड फॉर द चाइल्ड्स बेनिफिट ऑल्सो. सो तब उसकी मेंटल स्टेट, क्योंकि सोसाइटी भी उसको क्वेश्चन करती है, उसको बच्चा भी बड़ा करना है, and then there is this custody battle also. correct, So of the children. how to go through that? See here I would like to correct you. आज के सिनारियो में जो केसेस हम रोज कोर्ट रूम में देखते हैं ना, मैंने एक चीज बताई आपको पहले कि फीमेल्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज विक्टिम, जो गलत है. Got it. In certain cases I have personally seen that the male is literally harassed. हम केस कर देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को फंसा देंगे. सो अभी ये दौर चल रहा है कि जहां पे आई हैव सीन इन सर्टन केसेस द मेल इज शोइंग अंडरस्टैंडिंग कि मेरे बच्चे हैं, सोसाइटी है, सो द फीमेल इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ बीइंग फीमेल एंड दे आर गोइंग थ्रू एंजाइटी. तो ये जो चीज है ना, हम जो पहले बोल रहे थे जेंडर इक्वालिटी, ये एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी है, पर ये इतना ज्यादा मेस्ड अप है अभी के टाइम में सिनारियो कि इन सर्टन केसेस यू विल सी दैट आई एम आल्सो सरप्राइज्ड कि लाइक हाउ कैन अ फीमेल डू दिस. हाँ, रीजन फेमिनिज्म में भी होता है. देयर आर सूडो फेमिनिस्ट्स आल्सो. अभी जैसे किसी लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ मारा, ठीक है, तो बोले ये लड़की ने मारा. अगर वो लड़के ने वापस उस लड़की को मारा तो बोलेंगे हो लड़की भी उठाया. राइट, So that kind of cases वो pseudo feminism, without knowing the facts. Recently, if you are aware, हमारे यहाँ कोस्ट गार्ड स्कूल, वहाँ पे जो क्वार्टर्स है, तो that person was serving कोस्ट गार्ड. फैमिली हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ. वो वाइफ ने, उसके 2 बच्चे थे,
5 years and 2 years ऐसी कुछ एज होगी. उसने पता है दोनों को उठा के बालकनी से नीचे फेंक दिया. एंड दिस वाज समथिंग, शी गॉट बेल ऑल्सो, क्योंकि जो मैंने बोला ना इनटॉलरेंस, उस मोमेंट में नहीं पता चला कि क्या किया. नाउ वी कैन थिंक एज अ मदर कि उस पे क्या बीती हो. और झगड़ा क्या था हस्बैंड के साथ, हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा. बच्चों ने क्या किया था. So that's why my main message is कि be responsible and be more vigilant कि आपके बच्चे हैं. तो once when you opt for a child, आपके जो भी decision है whether to tolerate further or not to tolerate, वो पूरा आपको ये सोच के करना है कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा या बच्चे पे क्या असर होगा. डेफिनेटली. हाँ, क्योंकि ये चीज है कि माई पर्सनल ओपिनियन इज दिस कि आपने अपनी जिंदगी जी ली. आपको जो भी करना था आपने कर लिया, अपने डिसीजन, अपने लाइक्स डिसलाइक, ठीक है. आप उस एज तक आपने उतना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, 40-50. अब क्या उनका शुरू हुआ है जर्नी. तो नाउ यू हैव टू थिंक लाइक अ पेरेंट एंड नॉट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ. और जैसे मैंने बताया कि ये जो एक नया जो एक दिखने में आ रहा है अभी काफी सारे केसेस में, एंड दिस आर दी ओनली रीजंस कि ये जो इनटॉलरेंस है, फिर ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, ठीक है, इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसके चलते अलग क्राइम होते हैं. So these all things are coming up and we have no other option. What best we can do is we can just educate the people in our own family. Outer factors तो वो तो हमारे कंट्रोल में हम कभी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते. So talking about children, one question that I have asked all the mothers who have been on this podcast with me, ki how did you balance working and being a mom? Like any message to the new moms who want to keep on working? This is something, you know, कि जैसे मैंने बोला ना कि my main principle is that कि your child is your responsibility and parenting is very crucial job. As we have discussed कि I changed my profession. Imagine, I was just a graduate and having corporate का experience. After getting first child, I did my diploma in teaching. ठीक है. First I worked as a teacher. उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया. तो I gave priority to my child. उसकी वजह से the benefit which I got is कि I really am proud of this, saying this, that my son is a genius. Like knowledge wise and everything. He has got so many medals and today also whatever field in what he is working, he is a genius in certain matters and all. Now I take his advice also ki you guide me, what should I do. Second time when it happened, again I gave priority to my child. It is very difficult. In fact at times, you know, even I used to lose that strength ki nahi hoga, matlab bachcha संभाले, when the child is not well you have to go to office. And but somehow, you know, what I think is there you have to train your willpower, जो हम बोलते हैं mindset, कि आपने ठान लिया. Females are having that superpower. आपने ठान लिया कि मुझे करना ही है. You will be able to do everything. But we don't know our limits. We are totally unaware of our own superpowers. After my daughter, she was hardly 4.5 years old when I lost my husband. उनके जाने के बाद I decided I'll study law. So imagine that time I was working also in some office. My children were school going children. उसके साथ मुझे अपना एग्जाम प्रिपेयर करना है with the household because financial also that time I had to manage. देखना पड़. So but this is what I say कि once you decide कि करना है तो हो जाएगा. Thing is impossible and this is totally इसमें कोई gender discrimination नहीं है. It is applicable to both for the male and female कि अगर आपने decide किया कि मुझे करना, then you will be able to do it. And your children in one aspect is that कि बच्चे हैं तो आपका limitation है. No, they are your strength. They motivate you कि mama you have to do something for us indirectly. तब तो मेरे बच्चे भी काफी छोटे थे, पर मुझे अगर आज के जमाने में मतलब if somebody ask me अरे आप यहाँ तक पहुंचे ये वो,
So I also feel, no, my children, they were my strength at that time also. Because I had that thing in mind, I want to give them a better life. I want to do something for them. I don't want them to suffer. मैंने कहीं ये पढ़ा कि योर चाइल्ड इज द फर्स्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड हु मेक्स स्पेस फॉर योर वर्क लाइफ. तो मेरी बेटी अभी एवरी डे शी सेज बाय टू मी. True. अब उसको आदत पड़ गई है कि मम्मी तो जाएगी. And they make you the better version of yourself because उससे पहले आप उतना अच्छे से टाइम मैनेज नहीं करते थे, जरूरत नहीं थी. डेफिनेटली. उनके आने के बाद see how nicely you are managing everything. मैंने भी वो किया है. इवन यू माइट हैव डन दैट. एक हाथ में हमारा बच्चा पकड़ा है, एक हाथ फोन पे, एक हाथ क्या खाना होना है. सो इट इज दैट्स व्हाई आई से कि चिल्ड्रन आर योर सुपर पावर. दे आर योर टीचर्स. दे गाइड यू. I'll share one personal experience with you. When my husband died, okay, we had been to his native. As you are aware कि मैंने तो court case वगैरह file किया था. So what happened, no, when my husband's dead body was brought and I was sitting there, I was crying very loudly, I was screaming. My daughter, she was 4 years old, she was on my lap. My son was sitting next to me. They were not understanding also क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ऐसे. So I was screaming like anything and crying because I was not understanding कि now what I am going to do. Like I'm not going to get maintenance. अभी ये बच्चे हैं. How I'm going to. My daughter, she just looked up and she's asking me like, Mama, why are you crying? And you won't believe, you know, I still get the goosebumps because the hidden message what she gave me is why you are crying. You had problem with someone. He's no more. And we are still there. You wanted us. So we are still with you. And that made me stop crying, you know. तो मुझे ऐसा लगता है. And I still, even like in 2017, I purchased a car. What happened, no, like for many things I had to take help from others. कि ये सामान लेके जाना है, थोड़ा गाड़ी. I was having 2-wheeler. So every time then I thought कि नहीं, now I'll have to do something. So I bought a car. आ गई पर ड्राइविंग मेरे पास लाइसेंस 2004 से. पर कभी मैंने बोला कि हमारी सोसाइटी वो है ना, हस्बैंड थे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कभी ड्राइविंग में. एंड माई डॉटर ना एवरी डे मॉर्निंग शी यूज्ड टू गेट अप एकदम एक्साइटमेंट में, मम्मा आप हमको गाड़ी लेकर छोड़ने आओगे. एंड आई वाज लाइक समटाइम्स आई यूज्ड टू स्लेप हर ऑल्सो. हाँ तने आई सेड મમ્માને આવડતું નથી અને તને રોજ જોઈએ છે કે હું ગાડી લઈને આવું. તો आई सेड કે હમણાં ચૂપચાપ જતી રહે. એન્ડ शी यूज्ड टू मेक फेस लाइक दिस. And finally, you know what happened? I used to feel guilty कि ना बेचारी ना શું વાંકને. So next day I told her चला जाओ मुझको आओ. And that today she made me the best driver. If I wouldn't have done that for her, तो मैं आज भी शायद वही डर में रहती ना. I wouldn't have been able to drive a car. So that helped. Like my experience is this कि if you give them proper support and if you think that my children are my strength, then you can just move mountains. डेफिनेटली. सो वन लास्ट क्वेश्चन. कानून अंधा होता है ऐसा क्यों बोलते हैं? कानून बिल्कुल अंधा नहीं होता है. कानून सब देखता है. Only the thing is, I would say that people have become very smart. Okay, and they know how to twist the things और किस तरह से कानून के सामने पेश की जाए जिससे कानून हमारी फेवर में आ जाए. बिकॉज सी जो विक्टिम है वो तो कभी लॉ पढ़ेगा नहीं. ठीक है, दे जस्ट नो कि दिस इज माई राइट, दे विल अप्रोच. अब जो कल्प्रिट है उसको बचना है, सो दे रीड द लॉ. और अभी तो ये सिनारियो है कि गूगल पे सारे एक्ट्स अवेलेबल है, तो पीपल बिफोर कमिटिंग क्राइम दे लर्न एवरीथिंग. अच्छा ये चीज ऑफेंस नहीं है तो दे विल जस्ट डू लूपहोल ऑफ दैट. सो कानून बिल्कुल अंधा नहीं है. और ये एक चीज भी हकीकत है कि देर से ही सही बट मिलता है, जस्टिस इज सर्व. बट एज आई सेड कि फॉर दैट यू नीड टू हैव एविडेंस, क्योंकि विदाउट एविडेंस जस्टिस भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. ओके, सो वी विल एंड ऑन दिस नोट कि कानून अंधा नहीं होता है. नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू हियर विद अस. थैंक यू सो मच. इट वाज एन ऑनर फॉर मी आल्सो टू कम एंड टॉक टू यू. थैंक यू so much. थैंक यू.